In this section, we are going to discuss about ephedra. First of all, we will discuss about the anatomy of root of the ephedra. As in the previous section, we have discussed about the distribution of ephedra, common characteristics of the ephedra, and anatomy of the stem. Now we will discuss about the anatomy of the root of the ephedra. This diagram shows the outline diagram of the ephedra, and in this diagram the outer layer is epidermis, and the function of the epidermis is to protect the inner tissues, and the second most layer is cortex. Cortex consists of two types of cortex, that is outer cortex and inner cortex. Outer cortex contain collenchyma cell, and the inner cortex contain parenchyma cell. It is just followed by the endodermis. Endodermis is of a single layer, and the endodermis is followed by the pericycle. Just after the pericycle, there is a presence of vascular tissues. Vascular tissues are present, and they are not conjoined. They are present in the form of patches, xylem, phloem, and the xylem is there is endarched condition, as the protoxylem is towards the periphery. Protoxylem is the first formed xylem that is present towards the periphery, and the metaxylem that is the latter formed xylem that is present towards the center. So the condition is called as endarched, and the center contain pith. Pith contain parenchymatous cell. This diagram shows the cellular diagram of the ephedra. This cellular diagram shows that the outer epidermis contain root hairs. Epidermis is single layer, and then the outer cortex and inner cortex. Outer cortex contain collenchyma cell. We know that the collenchyma cell generally provide mechanical strength to the plant. Inner cortex contain parenchymatous cell, that are involved in photosynthesis and storage and function. That is followed by endodermis, and endodermis is followed by pericycle. And just after that, there is a presence of vascular tissues. Vascular tissues are protoxylem and metaxylem. Protoxylem is present towards the periphery, and the metaxylem is present towards the center. So the condition is exarch, as we know that the first formed xylem is present towards the periphery, and the latter formed xylem is present towards the center. So the condition is exarch, and the pith is parenchymatous. Just after that, there is a now we will discuss about the reproductive organs of the ephedra. If we will discuss about reproductive organs of the ephedra, first of all, we will discuss about male strobilus of ephedra. Male strobilus is also called as male inflorescence, or we can say male flower, as the male inflorescence contain 2 to 10 ब्रैकेट्स. जो मेल इफेड्रा है उसके अंदर जो 2 से लेके 10 ब्रैकेट्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो नीचे वाली 2 से 3 जो ब्रैकेट्स होती हैं दे आर जनरली स्टीरोइल, एंड द अपर ब्रैकेट्स आर फर्टाइल. जिन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी मेल फ्लावर जो है अराइज नहीं होता वो आपकी स्टीरोइल ब्रैकेट्स हैं, लेकिन जिन ब्रैकेट्स के अंदर जो मेल फ्लावर है वो अराइज होता है वो हमारी जो है फर्टाइल ब्रैकेट्स हैं. और जो मेल स्ट्रोबिलस है या एफेड्रा है, ये हमारा जो है नोड्स के ऊपर अराइज होता है. ब्रैकेट्स जो हैं वो आपकी जो है इंडेकुशेट मैनर या अपोजिट मैनर में जो है वो आपकी अरेंज होती हैं, और जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस है वो आपकी नोड के ऊपर अराइज होती है इन द एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ. जहाँ हम जानते हैं कि एफेड्रा जो होता है उसके अंदर जो है स्केल लीफ जो हैं पाए जाते हैं. फोलिएज लीफ जो हैं वो हमारे जो हैं एब्सेंट होते हैं. तो अगर हम फ्लावर का अगर मेल स्ट्रोबिलस का अगर हम टीएस काटते हैं तो हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो प्रोसेस को दिखाता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो हमारी जो है कैसे हमारी जो है इफेड्रा के अंदर होती है, वो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे.
इस डायग्राम के बाद हम डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो मेल कोन है आपके, दे आर अराइज एट द नोड्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ। तो यहाँ पे मेल इन्फ्लोरेसेंस जो है हमें दिख रही है, जिसमें ब्रैकेट्स दिखाई दे रही हैं, और जो बाहर उभरे हुए हैं वो हमारे जो है मेल फ्लावर्स जो हैं वो हमारे दिख रहे हैं, जो कि आपके फर्टाइल ब्रैकेट्स की एक्सिल से जो है आपके अराइज होते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो आपकी कैसे होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो है आपका जो आउटर लेयर होती है वो है आपकी, जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और जो है इसके बाद जो है आपकी मिडल लेयर प्रेजेंट है। उसके बाद जो इनर लेयर है वो आपकी टेपेटम है। एपिडर्मिस जो है इनर टिश्यूज़ को जो है प्रोटेक्ट करती है, जबकि टेपेटम जो है और मिडल लेयर जो है उनका जो मेन फंक्शन है वो है नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो आपके डिवाइड करते हैं बाय मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर डिवाइड करने के बाद में जो है आपके माइक्रोस्पोर जो है प्रोड्यूस करते हैं। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड इन, और जो है वो आपके जो है पोलिनेशन, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन होता है, और तो उसी तरह से जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो भी आपके जो हैं जिम्नोस्फेरा के अंदर पाए जाते हैं। और जो है पोलिनेशन के बाद जो है वो आपके जो है फीमेल जो प्लांट है या फीमेल जो फ्लावर है या फीमेल जो इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पे आपके पहुँच जाते हैं, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और जो माइक्रोस्पोर्स का जो माइक्रोस्पोर्स से जो पोलिनेशन होता है वो आपका एनिमोफिली, या आप कह सकते हो फेडरा के अंदर पोलिनेशन आपका एनिमोफिली बाय विंड। बाय विंड से जो है आपके माइक्रोस्पोर्स जो हैं आपके वो आपके जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसके अलावा जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर जो है आपका एक्साइन दिखाया हुआ है, इंटाइन दिखाया हुआ है। माइक्रोस्पोर्स जो हैं उसके अंदर जो है आपका एक्साइन है, उसके बाद जो है आपका इंटाइन है। और अब हम बात करते हैं फीमेल स्ट्रोबिलस के बारे में। इफेड्रा ऑफ दी इफेड्रा फीमेल स्ट्रोबिलस, या फीमेल जो फ्लावर है आपका, या फीमेल जो इन्फ्लोरेसेंस है, या फीमेल स्ट्रोबिलस भी आप कह सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो फीमेल स्ट्रोबिलस है उसके अंदर या फीमेल जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर भी जो है ब्रैकेट्स आपके प्रेजेंट होती हैं, बट हेयर ओनली द 2 to 4 ब्रैकेट्स आर प्रेजेंट। एज इन केस ऑफ मेल फ्लावर देयर वाज 2 to 10 ब्रैकेट्स। यहाँ पे भी जो है आपकी जो ब्रैकेट्स, नीचे वाली जो ब्रैकेट्स हैं वो आपकी जो है स्टीरोइल हैं, ऊपर वाली जो ब्रैकेट्स हैं वहाँ से जो है आपका फीमेल जो आपका फ्लावर है वो आपका जो है आपका निकलता है। माइक्रोपाइलर ट्यूब जो हमें दिख रही है जैसे। इसके अलावा जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये आपका जो ओव्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम जानते हैं अच्छी तरह से, जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, 2 इंटेगुमेंट प्रेजेंट है। एक तो आपका आउटर इंटेगुमेंट है, उसके बाद है आपका इनर इंटेगुमेंट। और जो आउटर इंटेगुमेंट है अगर वो हम देखें तो थ्रू लेंथ जो है वो आपका जो है आपका अटैच नहीं होता, वो आपका ऊपर की साइड फ्री होता है और नीचे की साइड जो है आपका अटैच होता है। इसके अलावा जो इनर जो आपका इंटेगुमेंट है वो जो है साइज में बड़ा होता है, और जो इनर इंटेगुमेंट है इट कंटेन्स माइक्रोपाइलर एंड। और इसके बाद जो है आपका जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर जो है पोलन चैम्बर जो है हमें दिखाई दे रहा है। पोलन चैम्बर का मेन फंक्शन होता है कि ये पोलन जो है को स्टोर कर लेता है। पोलिनेशन के बाद जो पोलन है वो आपका पोलन चैम्बर के अंदर पहुंचता है, और आपका जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर वो जो पोलन है आपके पोलिनेशन के थ्रू जो आते हैं बाय एनिमोफिली या विंड पोलिनेशन से जो आते हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं पोलिनेशन के अंदर। इसके अलावा जो है आर्चिगोनियम जो है वो आपका प्रेजेंट होता है, और जो है एंडोस्पर्म जो है वो हमें डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि एंडोस्पर्म जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो है तो हम कह सकते हैं कि जो ओव्यूल है आपके 2 इंटेगुमेंट प्रेजेंट हैं। अंदर जो है आपका ओव्यूल है, आउटर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, फिर इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, और ओव्यूल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सारी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो है इस डायग्राम के अंदर भी जो है मेगास्पोरोजेनेसिस को जो है दिखाया गया है। इसमें भी जो है सेम चीज़ें दिख रही हैं हमें, अच्छे से दिख रहा है कि आउटर इंटेग इन जो आपका लेंथी साइज का दैट वाज इनर इंटेगुमेंट,
and the smaller in size, that was the outer integument. There is a presence of 2 integument, and the इफेड्रा का जो ओव्यूल है इट शोज द माइक्रोपाइलर एंड, दिख रहा है हमें डायग्राम के अंदर। इसके बाद ओव्यूल आल्सो कंटेन द पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर का जो फंक्शन है वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इफेड्रा के जो पोलन है वो जो है यहाँ पे आके जो है एक्युमुलेट हो जाते हैं, और पोलन जो हैं वो आपके जो हैं पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद में जो है अल्टीमेटली देयर इज ए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और जो है आपका इफेड्रा जो है उसका आपका काम जो है एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन है वो आपकी होती है। आर्किगोनिया में दिख रहे हैं। इसके अलावा न्यूशैलस है, फीमेल गैमेटोफाइट है, स्टोरेज रीजन है, स्टोरेज रीजन, ये सभी रीजन जो है हमारे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर हमें दिखाए गए हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट कैसे होती है इसके बारे में भी जो है इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर या मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो एक आर्चिस्पोरियल सेल है वो आपका जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, वो आपका पैराइटल सेल और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जो है वो आपका डिवाइड हो जाता है, और जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है वो जो है आपका फर्दर जो है उसके अंदर जो डिवीज़न है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, और डिवीज़न के बाद में जो है आपके जो है जो सेल बनते हैं तो डिवीज़न होता है। डिवीज़न के बाद में जो है आपके जो सेल्स हैं वो हमें जो है डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं कि जो एक टेट्राड आपका बन जाता है, जिसमें से जो है 3 जो मेगास्पोर हैं वो आपके जो है डिजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो आपका जो है फंक्शनल रहता है। तो एक ही मेगास्पोर जो है लास्ट में जो है आपका फंक्शनल रहता है। तो ये सब जो है हम बात कर रहे हैं इस सेशन के अंदर हमने बात की है इफेड्रा के जो है एनाटॉमी रूट की जो है वो हमने पिछले सेशन में जो है हमने बात नहीं की थी। उसके बाद जो है इस सेशन में हमने बात की है कि जो है इफेड्रा का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कैसा है, और जो है पोलिनेशन जो है वो कैसे होती है। उसके बाद जो है हमने बात की है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आपका कैसा है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो है पोलिनेशन के बाद जो पोलन है वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो है कहाँ अकोमोडेट होता है। ये सब चीज़ें हमने जो है इस के अंदर डिस्कस की हैं। इसके अलावा जो आपका इफेड्रा है, इफेड्रा के अंदर जैसे आपकी जो चीज़ें बची हुई हैं, मेल गैमेटोफाइट आपका कैसा होता है, कैसे डेवलप होता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, और जो है एम्ब्रियोजीनी क्या है, एम्ब्रियो जो है कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर जो है कैसे उसके अंदर डिवीजन होता है, कैसे जो है वो सीड के अंदर जो है आपका कन्वर्ट होता है। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि जो आपका लाइफ साइकिल है इफेड्रा की, कंप्लीट लाइफ साइकिल कि फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक जो है कौन कौन सी जो है सीक्वेंशियल जो एक्शन है इफेड्रा का, वो सारी चीज़ें हम जो है नेक्स्ट सेक्शन में डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर इतना ही। थैंक यू।